Assalamu alaikum. I'm Faryal Khan. I'm researcher, writer, and I have been journalist. So here we today our topic is applied research in Pakistan, and we have our guest regarding to this. So first of all, we will have introduction of Eliezer. Thank you so much, Faryal. I am Dr. Ali Asad, and I am working as campus director in NCBA, National College of Business Administration and Economics. Actually, I am a specialist in human resource management, and I have a research experience related to human resource management and leadership styles. So I am also working with some industry to apply basically as some sort of research, and I am very keen to link academia and industry. So it's my specialty. Okay. Next, Jamil. Yeah. Engineer Jamil Khan, Bismillahirrahmanirrahim. Engineer Jamil Khan is here. I did my electrical engineering from UET, and after that, I started preparation for CSS competitive exams. And in 2020, mid of 2020, I started my own business in solar system installation services. Is the name of Test Park 3 Engineering Services in Pakistan. And now I am doing two types of works at a time. First one is the field work, which is my own business, as I told you before. And the second one is that to teaching the CSS aspirants in Superior Services Academy Multan. So that's my generally introduction. Okay. Next we have Gohar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum Can assalam. you hear me? Yeah. Yes. How are you? How are you, Faryal? I'm fine. Give you a brief introduction, Gohar. Okay. Assalamu alaikum. Basically, I am Gaur Abbas from Multan. I have completed my MPhil in computer sciences. I am gold medalist also in masters and also in MPhil. So basically, my specialization is computer sciences and also business and management. So that's my field, and इस फील्ड को बेहतर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं. जो अल्लाह ताला ने तौफीकात हमें दी हैं तो उनके ऊपर काम कर रहे हैं. तो आज का जो एजेंडा है उसके ऊपर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम. तो कंटिन्यू करूँ मैं अपनी जो हमारी टॉक है. Okay, Salman. Okay. Okay. Acha, ji, thank you and good evening, everybody. And this is Salman A. Sheikh, and I did my MBA from University of Newcastle, Australia, back in 2014. And currently, I'm doing my क्या कहना चाहिए business कर रहा हूँ मैं और industrial packaging manufacturing. I'm based here in Gujranwala. और besides that, I'm writer. Sometimes I contribute in Tribune. और मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में अप्लाइड रिसर्च के ऊपर और मैं ऑलरेडी एक स्टार्टअप भी लाइक एक चला रहा हूँ रिलेटेड टू मेडिसिन जो कि मैंने लाइक पेटेंट्स और गूगल स्कॉलर से रिसर्च करके विद सम रिसर्च स्कॉलर से कोलैबोरेट करके डेवलप इट और उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया और प्रेजेंटली आई एम डूइंग लाइक उसकी ना मैथ प्रोडक्शन और सेलिंग इट और एक्सपोर्टिंग इट एज वेल. बट आई डोंट वांट टू लाइक पब्लिकली इसको ज़्यादा रिवील करना, लेकिन आई एम डूइंग इट. और इसके साथ मैं फेसबुक पे ग्रुप चला रहा हूँ कारोबार इंडस्ट्री एकेडमिया लैब के नाम पे, जिसमें तकरीबन आई गेस कोई 250 लोग होंगे डाइवर्सली. और उसमें आई वुड लाइक के सब लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ, अगर इफ़ यू गाइस हैव इंटरेस्ट तो आप उसके अंदर एज अ वॉलंटियर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल हमारी अपनी कोई अल्टीरियर मोटिव या कुछ भी उस तरह नहीं है. थैंक यू सो मच. Okay, next we have Salman, Engineer Salman. Let's have a brief introduction of him. Yes. Hello. I am Salman. आवाज आ रही?
Yes. Okay. Hi everyone, I am Engineer Salman and I am currently doing my PhD in Energy and Economics. I am studying in UET Lahore and also I am a lecturer in the University of Lahore. Thank you. Thank you. So wonderful craft we all you all have, and as my viewers know that I'm doing podcasts on national as well as international level. I'm doing collaboration on inclusive level. So as a researcher, here is our team applied research in Pakistan. So today we all have inshallah inclusive discussion, and will with this wonderful collaborations with diverse minds. So, my first question is, what is applied research, and how project management can help in applying this, like in this regard? It is from Gohar Abbas. Thank you, Faryal. You give me time to elaborate this topic. And now I am discussing about this topic. So डिबेट शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो है रिसर्च का जो मतलब है उसको वाजे नहीं किया जाता। हमारी जो अवाम है वो रिसर्चर्स तकरीबन कुछ लोग हैं जो रिसर्च करते हैं लेकिन उनके पास डिग्रीज नहीं है। लाइक एक कारीगर है जो एक मिल में काम कर रहा है, वो कुछ ऐसी इन्वेंशन कर देता है जो कि मिल के कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जिसके इंजीनियर भी वो काम नहीं कर सकते, बाद का तो मिल में वो बंदा काम कर रहा होता है। बिहाइंड द सीन क्या होता है, उस बंदे की कुछ ना कुछ रिसर्च होती है लेकिन उस बंदे के पास कुछ वो नहीं है, लाइक मैथमेटिकल मेथड्स नहीं है, या वो किसी चीज को सिस्टमैटिकली लेके नहीं चलता, जिसकी वजह से क्या है कुछ फ्लॉज उस बंदे को भी आते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि इल्म का फुकदान है जिसकी वजह से सारे मसले आ रहे हैं, तो इनिशिएटिव कौन लेगा? हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे बड़े लेंगे। अगर वो नहीं ले रहे तो हमारे हाथ में है गेम, हम तो कर सकते हैं ना। सो हमें क्या करना है कि हमें जाके विजिट करना है उन लोगों को कि जो लोग लाइक छोटे लेवल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, छोटी सी इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री में आप जानते हैं कुछ ना कुछ मसले चल रहे होते हैं, लाइक प्रोडक्शन ऑफिस हैं, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनमें मसले क्या आते हैं कि वो फेलियर की तरफ क्यों जाते हैं? उसमें बाज़-औक़ात मसला होता है हमारी टीम का। हमारी टीम जो है वो अनप्रोफेशनल लोगों की टीम होती है। लाइक एक ऑफिस चल रहा है, उसमें पर्सन ही आपने ऐसे हायर करके रखे हैं जो कि उस क्वालिटी को मीट नहीं करते। आपने किसी के रेफरेंस से उसको ऐड कर लिया या व्हाटसोएवर, कैसे भी आपने टीम हायरिंग की, तो उसकी वजह से वो बिजनेस लॉस में जा रहा था। सो बेसिक जो पर्पस है हमारा यहाँ पे आज का एजेंडा जो कि आपने बताया, अप्लाइड रिसर्च। सो बेसिक अप्लाइड रिसर्च का जो मकसद है, जो मोटिव है कि आप प्रैक्टिकल जो रिसर्चेस, प्रैक्टिकल जो अप्रोच हैं हमारे पास पढ़ी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज पढ़ी हैं, उनको उठाएं, अपनी करंटली स्टडी के साथ उसको मवासना करें और वहां पे उसको अप्लाई कर दें। इसका बेसिक फायदा क्या होगा? इसका बेसिक फायदा ये होगा कि जहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी में मसला आ रहा है, जहाँ क्वालिटी में मसला आ रहा है, वो क्वालिटी बेटर इंप्रूव होके आएगी। सो मैंने एक प्रॉब्लम देखी, लाइक मेरे अपने ऑफिस में, मैं बेसिकली 4 साल से अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ जिसका नाम है गोहर अब्बास टेक्नोलॉजीज, गाटेक भी कह सकते हैं उसे, और किसका कंप्लीट नाम मैंने रखा है गाटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो बेसिक फोकस हमारा जो है कंपनी का वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ। अब नए प्रोजेक्ट्स की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो उसका बेसिक मकसद यही है कि रिसर्च को लोगों तक पहुंचाना है और इसके जो फायदे हैं, इसके जो वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमने देना है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे मैंने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स को फेल होते हुए देखा, और वो प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि उस लेवल की टीम नहीं थी मेरे पास। मैंने समझा कि ये लोग वो लोड बर्दाश्त कर लेंगे। तो वहाँ पे जब हमने ये चीज़ देखा कि एक बंदा जो कि कॉम्पिटेंट था, लेकिन जब उसको हम दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं जिसका उसे हाउ नो नहीं है और जिसके बारे में उसकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि किसी का रेफरेंस से आया हुआ है, इसको एडजस्ट करना है। तो जब एडजस्ट करके मैंने उस बंदे को वहाँ पे इन किया,
तो वो प्रोजेक्ट मैंने देखा, मैंने छोड़ दिया क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर मैं था, उसको सेकंड प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया, तो मैंने उससे रिपोर्टिंग लेना छोड़ दी। मैं कहा ये प्रोजेक्ट मैनेजर ये मैनेज कर रहा है। आफ्टर 2 मंथ्स जब मैंने उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखी, हुआ कुछ ऐसा कि प्रोजेक्ट अभी भी तकरीबन 5% खड़ा था, जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को 75% को मीट करना चाहिए था। फिर मैंने वहाँ पे कुछ स्टडी की, केस स्टडीज पढ़ी और देखा, वहाँ पे जाके जो मुझे प्रॉब्लम नजर आई, प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा सिलेक्शन गलत था। मैंने जिस बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया है वो उसकी अहलियत ही नहीं रखता था। उस बंदे ने कभी मीटिंग कंडक्ट नहीं की अपनी टीम के साथ। उस बंदे ने पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर को एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पता ही नहीं है। अब डेवलपर और उसके दरमियान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता और चीज Okay. वहीं की वहीं रह जाएगी। Okay, so come to the point that what is like applied research and how it can be managed, like according to your experience and whatever you have experienced, you told us. So how we can manage it efficiently and as well as effectively? Okay, let me elaborate. Applied research is a methodology used to solve specific practical issues affecting an individual group. This individual group can be a medical field, can be a project Engineering management field, field, can yeah, be and specific to the field. Okay. yeah. तो जब स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेरी फील्ड है दैट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपने यहाँ पे ऐड किया। तो इसको अप्लाई करने का जो बेसिक मकसद ये है कि जो प्रैक्टिकल हमारे पास पहले से थीम्स पड़ी हैं, हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लाइक कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसको अगर आप चाहते हैं कि वो अपना सक्सेस की तरफ जाए, तो उसमें अगर कोई फॉलो अप फ्लॉज आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे साफ जाहिर है कि एक स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी क्या होगी? केस स्टडी होगी। उस केस स्टडी का जो आउटकम्स आएंगे वो हमारी रिसर्च पे अप्लाई होंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे तो वहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो बेटर हो जाएगा। इसकी बेसिक एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन रिसर्च जितनी भी हो रही है मैनिपुलेशन बेस्ड हो रही है। लाइक एक बंदे ने रिसर्च की अमेरिका में, उसने कहा कि यहाँ पर जो है आम 3 महीने में होते हैं हमारे इस एरिया में, और वही सेम रिसर्च उठा के जब पाकिस्तान में लगा दी गई तो बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ जो है 2 मंथ में हमारे यहाँ पे आम जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिक यहाँ पे क्रिएटिविटी कहाँ है? हमारे यहाँ जितनी भी रिसर्च चल रही है तकरीबन इसी बुनियाद पर चल रही है कि जो बाहर की प्रैक्टिसेस हैं उनको सेम एज इट इज अप्लाई करके दिखा दिया जाता है कि वहाँ पे 3 मंथ में हो रहा था, पाकिस्तान में 2 मंथ में हो गया। नो डाउट यहाँ पर आपने इन्वायरमेंट चेंज करके दिखा दिया कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ और था, यहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है। दैट वन इज आल्सो रिसर्च, बट आपको चाहिए कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस करें। सो कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए रिसर्च लैब। रिसर्च लैब के अलावा हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि तकरीबन हुकूमत की तरफ से हमें प्रोवाइड होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी रिसर्च लैब जो कि पाकिस्तान में मशहूर हो, मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना। लाइक फॉर सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, फर्स्ट आपने रिसर्च लैब की है गोहर, और सेकंड आपने क्या कहा है? रिसर्च लैब चाहिए। रिसर्च लैब के अंदर इक्विपमेंट्स होंगे ना, साफ जाहिर है। Okay. हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कुछ टूल्स भी होते हैं। वो टूल्स होंगे तो काम चलेगा ना। लाइक गौहर साहब रिसर्चर हैं, उनके पास नॉलेज है, वो आवाम को सिखाना चाह रही है। लाइक उनके पास स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन उनके पास वो टूल ही नहीं है जिस टूल के जरिए से वो आवाम को रिजल्ट्स निकाल के देंगे। तो जब वो रिजल्ट्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो फिर फायदा क्या है? बेसिक मकसद है इन्वेस्टमेंट ऑन टूल्स। हमारे यहाँ हर बंदा वो टूल परचेज नहीं कर सकता। रिसर्च, हर किस्म के रिसर्च के लिए डिफरेंट किस्म के टूल हैं, तो वो टूल्स जो हैं काफी कॉस्टली होते हैं। सिंगल पर्सन तो उसको कभी भी बियर नहीं कर सकता। बाहर क्या है, बाहर आउट ऑफ कंट्रीज लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है रिसर्च की सहूलत। हमारे यहाँ जो रिसर्च का फुकदान एक ये है कि हमारे यहाँ जो भी बंदा बाहर निकलता है, उसने अगर रिसर्च करनी है, स्टडी करनी, कुछ भी करनी है, उसके दिमाग में एक चीज है, मैं पैसा कमाऊंगा, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसके बिहाइंड मुझे पैसा मिलेगा। जब ये सोच हमारी आवाम में से निकाल दी जाएगी कि आप जो काम करने जा रहे हैं पैसे के लिए करने जा रहे हैं, तो तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, तभी रिसर्च के रिजल्ट्स बेटर आएंगे, तभी हमारे यहाँ चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। अब ये सहूलत कौन दे सकता है? ये सहूलत गवर्नमेंट दे सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो हमें कुछ फलाही इदारे ऐसे बनाने चाहिए जो कि लोगों को फंड करें ताकि वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें। मैंने अभी कुछ गरीब के बच्चे देखे हैं, तकरीबन उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया,
अब एमफिल कर रहे हैं लेकिन उनके पास रिसर्च के बहुत कमाल किस्म के आइडियाज हैं और वो उनके लिए कुछ टूल्स उनको चाहिए होंगे अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब उनको कोई बंदा फंड नहीं कर रहा, फंड होगा तो वो आगे जाएंगे। अब वो मुझसे बात करते, गौर साहब हम क्या करें? मैंने कहा कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। मुझे पता है इस टूल पे करंटली आपका इतना इन्वेस्टमेंट लगेगी जो कि कोई नहीं देने वाला। मैं कोई इन्वेस्टर हायर करता हूँ या कोई फंडिंग करता हूँ, आपको इन्वेस्ट करा के दूंगा, आप अपना काम जारी रखें और जब आप अपना काम रिसर्च का कर लेंगे, होप्स हो कि उससे कुछ अर्निंग आएगी और आपका ये सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो उनको मैंने इस तरह से होप देके काम स्टार्ट कराया। लेकिन मैं इस वक्त चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि कुछ फंड रखती हो अपने पास, इन लोगों को हम फंड करें और ये रिसर्च करें और इसी तरह से हमारा सिस्टम आगे जा सकता है। Right. So of course, जैसे कि I have made this initiative to have the wonderful collaboration, क्योंकि collaboration जो है वो गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से लेने की बजाय और या यूनाइटेड नेशंस या जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनसे कोलैबोरेशन की बजाय इंक्लूसिव कोलैबोरेशन होना इंपॉर्टेंट है। और हम ही में से ही स्पॉन्सर्स जो हैं वो आ सकते हैं और हम ही में से ही जो हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो इंटरप्रेन्योर्स जैसे कि लास्ट 10 ईयर से हम लोग देख रहे हैं और न्यू इंटरप्रेन्योर्स जो इस पेंडेमिक के दौरान आए हैं, तो दे आर वेरी एफिशिएंट टू गिव टूल्स एंड एज अ वॉलंटियर भी वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और लाइक इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड इट्स अ गुड स्टार्ट टू like to have this. Okay, so thank you Gohar for this. और इसके हवाले से आप जो है वो आप क्या कर रहे हो एज एन एक्सपर्टीज? व्हाट इज योर इनिशिएटिव? यस, मैंने इनिशिएटिव ये लिया है कि इस वक्त मैंने अपनी कंपनी को क्योंकि स्टेबल कर लिया, 4 साल से चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एक नया सेकंड ऑफिस मैंने ओपन किया है जहाँ पर मेरी बेसिक फोकस ये है कि मैं छोटे लेवल से लोगों को ग्रूम करूँ। लाइक मैट्रिक 9th एंड 10th के जो बच्चे हैं, ये लोग बाज़ का आगे नहीं पढ़ पाते, तो इनको ट्रेडिशनल स्टडीज के बजाय मैं अपने पास बुलाऊं, छोटी सी एक रिसर्च लैब बना रहा हूँ, वहां पर इन लोगों से मैं कुछ आइडियाज डिस्कस करूं, इनसे वो काम कराऊं। क्योंकि बी ऑनेस्टली मैंने एक चीज देखा कि ये जो माइंड्स है ना हमारे मैट्रिक लेवल के, इनको जो चीज सिखा दी जाए ये सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। यंगस्टर्स होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इस एज में इनको जो भी काम सिखा दिया जाए ये हम लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, तो मैं जब मास्टर्स के बच्चों को एक प्रॉब्लम समझाता हूँ, उनसे हल करा रहा था, उनसे वो सॉल्व नहीं हुई और ये मैट्रिक के बच्चे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे थे। तो वहां पे मैंने कीनली जब कुछ स्टडीज की तो मुझे पता चला कि ये बच्चे फ्रेश हैं, फ्रेश माइंड हैं, इनसे जो भी काम लिया जाए ये आगे बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो इन लोगों पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन लोगों को उठा रहा हूँ कि जो लोग आगे नहीं पढ़ सकते, मैट्रिक तक हैं, इनको मैं फुली फंड कर रहा हूँ, इनको मैं अपने पास बिठा के जो है सिखाने के उसमें हूँ और रिसर्च बेस्ड स्टडी ही कराऊंगा। बेसिकली कोई डिग्री नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक मास्टर के बच्चे से सबसे ज्यादा जो है अच्छा काम कर रहे होंगे। तो इन्हीं के ऊपर ये मेरा सिस्टम चल रहा है। होप्स हो कि इसके लिए कुछ इंशाल्लाह फंडिंग के लिए भी मैं बाहर निकलूंगा मार्केट में और सक्सेस फैक्ट्री लेके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जब सामने आएंगे और वो उनका रिसर्च पेपर गूगल के ऊपर पब्लिश होगा, तब जाके जो है मैं फिर लोगों को दिखाऊंगा कि इन्होंने इतना नोबल काम किया है, अब इनको और फंड चाहिए, तो लोग उनको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे और वापस इंशाल्लाह वो बच्चे रिटर्न भी कर रहे होंगे। ग्रेट 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 गोहर, वी आर विद यू। और हम ही में से ही जो है वो स्पॉन्सर्स इंशाल्लाह होंगे और हम ही जो है विद कोलैबोरेशन हम लोग स्पॉन्सर प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह वी विल हैव ग्रेट कोलैबोरेशन। Okay, my next question. Thank you, Gohar Abbas. Thank you Faryal. My next question is from Salman, Engineer Salman. That like economy, energy, and political policy nexus. Um, according to this nexus, what future of Pakistan beholds the energy wheel? Okay, according to economy, energy, and political policy nexus, what future of Pakistan beholds the energy wheel? Yes. First of all, I will start with the energy, environment, and economy nexus in Pakistan. My all respectable members who are participating today, they are very much capable of understanding this issue. That energy is the backbone of any economy, and due to the modern legislation of environment and the global warming issues, We are not getting your voice. Hello, we are not getting your voice.
आप प्लीज हेलो लाउड बोलें, लाउड एंड क्लियर बोलें। जी जी, मेरी आवाज आ रही है बात जी 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 क्लियर? जी, अब क्लियर है। जी, so I am going to start from the energy, environment, and economy nexus. So we all have understood this issue that energy is part and parcel and backbone of any economy in modern era. So energy is dependent on the economy and they are both interrelated with each other. But a third factor that is environment. It also includes because the modern legislation and global warming as an issue has become a very significant. I have a question with Salman. Salman, how industry and Salman Sheikh, how industry Okay, and Salman Sheikh. yes, how industry and academic gap can be narrowed down, and what are the impacts on its economy as well as its political economy as well as trade? ठीक है, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अच्छा, इस पे ना मेरा सबको आवाज आ रही है, राइट? Yes. चलें, परफेक्टली फाइन। अच्छा, इसके ऊपर मेरी जो टेक है वो ये कि मेरा कुछ इंटरेस्ट भी है इसमें। तो पाकिस्तान के अंदर ना लाइक मैंने इस पे लिखा भी था लाइक 2018 में वी वर द टॉप इन लाइक आई गेस हमारी जो रिसर्च आउटपुट थी, बेसिक रिसर्च आउटपुट, बेसिक रिसर्च बेसिकली मैं थोड़ा सा ये भी इलेबोरेट कर देता हूँ। बेसिक रिसर्च इज लाइक थ्योरेटिकली एक्सपेंशन है, यू नो, और ये ज़्यादा उन लोगों के लिए दोज हु वांट टू यू नो गो आउट ऑफ द कंट्री फॉर पीएचडीज और यू नो नॉलेज की एक्सपेंशन के लिए थ्योरेटिकली। ऑन द अदर हैंड जो अप्लाइड रिसर्च है, इट्स मोर रिलेटेड टू उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो और लोकलाइज हो, जैसे भी गोहर बात कर रहे थे कि लाइक लोकलाइजेशन हो, उसकी डेमोग्राफिकली और लोकलाइजेशन हो, बेसिकली यू नो डोमेस्टिकली हो, ठीक है। वो पाकिस्तान में अच्छा खासा किस्म का एक मिसिंग लिंक है। और उसके अंदर आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लाइक एक बिजनेस डेवलपमेंट का भी एक पोजीशन होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लाइक मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो जस्ट लाइक मार्केट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, और सेल्स के लोग होते हैं वो टिपिकल सेल्स करते हैं। बिजनेस डेवलपर्स जो होते हैं इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो रिसर्च को भी लेते हैं और वो कॉस्ट कटिंग को भी लेते हैं, इनोवेशन को भी लेते हैं। Yeah. तो बिजनेस डेवलपमेंट भी एक मिसिंग लिंक है विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, ठीक है। और सेकेंडली जो अभी आप बात कर रही थी कि नैरो किस तरह किया जाए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है HEC का, हायर एजुकेशन कमीशन का, कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑडिट के नाम पे उन्होंने वो यू नो वो इंडस्ट्री एकेडेमिया को मिलाने के लिए एक अच्छा एक पोजीशन क्रिएट की है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा ना सरकारी सतह से लेके ज़रा कि प्राइवेट सेक्टर में लेके आना चाहिए, क्योंकि अब इधर का सेट है वो चाइना जाएगा, जर्मनी जाएगा, अमेरिका जाएगा, उधर से जापान जाएगा, टेक्नोलॉजी उठाएगा, मशीनरी उठाएगा, आगे फैक्ट्री लगा लेगा, ठीक है। मैं तो कारोबारी ना इंडस्ट्री, तो मैं तो इस तरह देखता हूँ चीज़ों को। तो किसी के पास इतना सरदर्द के लिए टाइम नहीं होगा, उसमें कंसल्टेंट्स को आगे आना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर लोगों की आना चाहिए, उसकी मोनेटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू इन दिस रिगार्ड कि इसके अंदर एक अच्छा खासा डिजिटल किस्म का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसके अंदर लाइक फ्रीलांसर टाइप से लेके जो कि प्रैक्टिकल कंसल्टेंट्स भी हैं, इवन दो दे गेट यू नो पैसे बनाए वहाँ पे, रिसर्चर्स पैसे बनाए, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइवेटली और वट एवर जिस जो भी मेथडोलॉजी है अपनी बताएं। उसके अंदर एक बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला कोलप ट्री के नाम पे, colabtree.com, दैट्स वर्ल्ड वाइड साइट, ग्लोबल रीच है, और लेकिन ये इंडिया की है और इसके इंडियंस पीछे से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड वेबसाइट। इट्स लाइक अपवर्क टाइप बेसिकली, लेकिन ज़रा सोफिस्टिकेटेड है, प्रोफेशनली है, ज़्यादा अच्छी है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोगों को वो भी देखना चाहिए, colabtree.com। तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, और इसके अंदर मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इससे इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप रिलेटिवली ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम लेकिन कम होता जाएगा। और दूसरी आपने बात की थी जी पॉलिटिकल इकोनॉमी की, तो मेरा इसमें टेक ये है कि लास्ट जब पाकिस्तान की सिविल जो गवर्नमेंट जब चेंज हो रही थी, तो उन लोगों ने लाइक हमारा जो इम्पोर्ट बिल था वो तकरीबन आई थॉट के $60 बिलियन का था, और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो तकरीबन $22 बिलियन का था, और उसकी वजह मतलब $38 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट था, ठीक है। तो अब उस ट्रेड डेफिसिट को बेसिकली कवर करने के लिए वी हैड टू गो टू IMF,
और ये सब लोगों के लिए एक बात होगी कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक वो हमेशा लोन देता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन जो IMF है वो हमेशा करंट अकाउंट को फैसिलिटेट करने के लिए या एड करने के लिए आता है इन दी डेवलपिंग कंट्री। तो जो IMF है वो उसके अपने टूल्स हैं एक, और उसके अपनी एक मेथोडोलॉजीज हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर बैठा देना हमारे पे, फिर पाकिस्तान में जिस तरह अभी आप देखो कि हाइपर इन्फ्लेशन हुई हुई है, इससे कितने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो लिंक्ड हैं वो आपकी ट्रेड डेफिसिट के साथ लिंक है, क्योंकि वी प्रोड्यूस लेस मटेरियल। हम रॉ मटेरियल में स्टील और आयरन सेक्टर हम तकरीबन $6 बिलियन का अप्रॉक्सीमेटली हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वी डोंट प्रोड्यूस स्टील शीट्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद है, ठीक है। वी डोंट प्रोड्यूस प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ, मेरा क्योंकि पैकेजिंग से ताल्लुक है, तो हम प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वी इंपोर्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट, ठीक है, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन का हम हर साल प्लास्टिक का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी के अच्छे खासे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, आपके इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं। सऊदी अरेबिया इटसेल्फ इज बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक है उसका पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। वट एवर दे प्रोड्यूस दे हैव टू सेल इट टू एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया इज वेल। उनकी जो मार्केट है, मतलब कि उनका जो इतना बड़ा हम लोग खर्चा उठाते हैं वो हम लोग उठाते हैं गरीब आवाम। उसका जो रॉ मटेरियल है, मैं आपको वो बताना चाहता पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, कि हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज है वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। बाय प्रोडक्ट जब हम ऑयल रिफाइन करते हैं नेफ्थलीन, हम उसको $1 बिलियन की वापस एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में क्योंकि प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे फिर फर्दर उसको प्रोसेस किया जाता है, वापस वही प्रोडक्ट वैल्यू एडेड होके पाकिस्तान आ जाती है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का अच्छा खासा स्टेक है। और विद रिस्पेक्ट टू जनरल वोटर अगर बात की जाए, तो ये जो बाज़ारों में और मार्केट्स में और छोटी छोटी फैक्ट्रियों वाले बैठे हुए हैं, ये सिविल गवर्नमेंट के अच्छे खासे सपोर्टर होते हैं, क्योंकि इनको टैक्स रिवीजन में फ़ायदा मिलता है। ये भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत बड़ा टूल है कि लाइक आपके पास 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आप 2 कंटेनर के आपके पैसे हैं, आप चाइना पैसे भेजते हो, अंडर इनवॉइसिंग करते हो और माल आपका आ जाता है। यू डोंट वांट टू प्रोड्यूस इट लोकली, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन किस्म का इफेक्ट आता है, जो कि गरीब से गरीब अब बंदा भी रुल जाता है, मतलब कि उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी इंपोर्ट है। पाकिस्तान को इसके अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करनी चाहिए, लोकल इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और इवन तो SME को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। और एक दो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, जस्ट गिव मी 2 सेकंड, मैंने ये लिखे थे। ये गोहर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है। डेफिनेटली बिजनेस सर्च का, स्पोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो पाकिस्तान में मिसिंग है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और हमें मिलकर इसके ऊपर कोलैबोरेट करके फंड क्रिएट करना चाहिए। आई एम टोटली ओपन इफ एनीवन वांट फॉर, मतलब इसके लिए कोई छोटी मोटी कोलैबोरेटरी फंडिंग, ऑब्वियसली इक्वली जो भी इसमें, तो ऑब्वियस वॉलंटरीली बेसिस पे। और साइंस पार्क का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लम उसके अंदर नस्ब में, तो इस्लामाबाद में, वहाँ सलमान, पे इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट होगा if we will do these बहुत initiatives? बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट, बहुत Yes, बड़ा डायरेक्ट please इफेक्ट है explain. इस तरह कि आपका डॉलर सस्ता हो जाएगा। Okay. सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है, डॉलर आपका सस्ता होगा। अभी आप देखो ना कि रिसेंटली पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, ठीक है। रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल के जरिए आने की वजह से पाकिस्तान में डॉलर अभी बैंकों में है, ठीक है। डॉलर आने की करेंसी एक्सचेंजर के पास नहीं है, उसका इफेक्ट देखो क्या आ रहा है कि 168 से डॉलर वापस 163 के ऊपर चला गया, ₹5 का फर्क पड़ गया। तो आप ₹1 से गालबन कोई कितने अरब रुपए का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो उसका Okay. इफेक्ट कितना ज्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन कम होगी उससे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। Nice. लोकल इंडस्ट्री लगनी चाहिए, Yeah. लोकल इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और चाइना को हमें देखना चाहिए, हमें अमेरिका को नहीं देखना चाहिए। गौहर बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम लोग वो वहाँ की रिसर्च उठाते हैं, वो मैंगोज की, और वो टाइम शॉर्ट करके और वो लाइक हम पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। दैट्स वेरी प्लेजरिज्म में पकड़े जाना चाहिए हम लोगों को, और बड़ी गलत अप्रोच है हम लोगों के लिए। तो हमें चाइना को फॉलो करना चाहिए। चाइनीज को अगर आप देखो तो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मैस स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट वो बनाते हैं तो वो एक दिन की शायद कोई 1 करोड़ प्रोडक्ट एक ही चीज बना रहे हैं, वो जगह जगह मुंह नहीं मारते। उनके आगे एक्सपोर्टर्स बैठे हैं जो अली बाबा पे, और वो उनको रिबेट्स मिलती हैं और वो उधर से प्रोडक्ट उठाते हैं और वो पूरी दुनिया में फर्दर वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं और मार्केट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा किस्म का इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को ना आगे आना चाहिए। लाइक बातें से ज्यादा हमें प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि यार ये हमने काम किया है, ये देखो इसके अंदर अच्छी एग्जाम्पल है। अब सियालकोट को आप देखो कि वहाँ पे किसी बंदे ने किसी जमाने में, मैंने सुना कि सागा स्पोर्ट्स के नाम पे कोई बंदा था,
that guy actually started manufacturing football handmade किस्म का. अभी भी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा उसी का ही दुनिया होता में है. जो फुटबॉल बनता है वो पाकिस्तान में बनते हैं Yeah. सियालकोट में. सियालकोट उनकी में. $2.5 बिलियन की सर्जिकल और स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट है. ये इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तानी एज वेल. एक छोटा सा शहर है वो किस तरह इवॉल्व किया, हमें देखना चाहिए, उसकी केस स्टडी लेनी चाहिए. और चाइना की हमें केस स्टडी लेनी चाहिए कि किस तरह वो इवॉल्व किया और किस तरह उन्होंने Also, I'd like दुनिया to में add वक्त डाला हुआ है. something. सलमान, अब सियालकोट में जो हॉकी इंडस्ट्री है, लाइक दुनिया की जो 98% हॉकी इंडस्ट्री का सिंगल ओनर है अवान स्पोर्ट्स के नाम से. तो वो भी एग्जैक्टली यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस. बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे. आई डिड नॉट नो दैट कि हॉकी के अंदर क्या. मैं तो जस्ट एक ओवरव्यू जस्ट लोगों को कि यार ये इसके अंदर भी सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है डिफरेंट प्रोडक्ट के. अभी गवर्नमेंट जैसे बात कर रही है कि सर्जिकल गुड्स ये जो प्रोडक्ट्स के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट भी बनने चाहिए फैसलाबाद में और सियालकोट में. तो इसके अंदर हमें ये काम करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म की तरफ हमें बात करनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म किस तरह हम डिजिटलाइज करके बिल्ड करें और लोग इसके अंदर हैं जिसके अंदर सब स्टेक होल्डर का फायदा हो, स्कॉलर्स का, रिसर्चर्स का भी फायदा हो और इंडस्ट्री के लोगों का भी फायदा हो, जो कि उनको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करके दिखाएं. लेट्स से अंडरग्रेड के अंदर इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो लाइक क्या काम कर रहे होते हैं, बेसिक रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं और हमें उसके ऊपर उनको प्रैक्टिकली मोटिवेट करना चाहिए कि यार लोग आओ और आके उसके ऊपर लोकलाइजेशन के ऊपर काम करो. और किसी इंडस्ट्रीज को कोई तकलीफ नहीं है 10-20 हज़ार रुपया देने में कि यार ये बच्चे ने काम किया है, चलो यार हमारी कोई छोटी मोटी रिसर्च कभी फायदा हो जाएगा, कभी नहीं भी होगा, इट्स ओके. लेकिन लोग मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई सिस्टम भी होना चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम नहीं है. तो हम लोग थोड़े बहुत रिलेटिवली पढ़े लिखे हैं, फॉर्चुनेटली प्रिविलेज क्लास है, तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरह हम प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं. जैसे रिहान अल्लाह वाला अच्छा काम कर रहा है. Yeah, thank you, Salman. Thank you, Salman Sheikh. Next question is from Jamil, Engineer Jamil Khan Kareen. Say that we were asking from Engineer Salman that about renewable energy, that how applied research can be, can be useful in renewable and energy sector. So you are also from solar energy sector as a business person. So first of all, tell about your business experience about this test park and ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो फंडामेंटल क्राइसिस हैं, हम अगर उस पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि वन ऑफ द मेजर क्राइसिस जिसकी वजह से बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो है एनर्जी क्राइसिस. अब उस एनर्जी क्राइसिस का किस तरीके से उसको कर्ब किया जा सकता है, उसका सबसे बेहतरीन जो हल है ड्यू टू